اور مجھے میرے سیدی نے، کیونکہ میں ڈاکٹر بھی ہوں، حکیم بھی ہوں، لیکن میں پریکٹس نہیں کرتا، ایک دو سلسلے ہیں، اللہ میرے اندر سے وہ نکال دے، اس دن نصیب حضرت بہ جوانی تھی۔ جب میں نے یہ دونوں کورس کر لیے تب مجھے سیدی نے بات سنائی، آپ فرمانے لگے کو بزرگ تھے ساتھ حکمت بھی کرتے تھے، مریض آتے تھے ان کے پاس، وہ کو مریض آئی نوجوان لڑکی تھی، جب انہوں نے نبض پکڑی نا تو شیطان تھوڑا سا غلبہ کر گیا، اور نبض پکڑتے ہوئے اندر تھوڑا سا غلط خیال آیا، لیکن ساتھ ہی رحمت ہو گئی، وہ دھیان کرو اللہ بھی ادا بھی، نبض چھوڑ دی، نبض چھوڑ دی، بس خیال ہی گزرا، اللہ شیطان کی طرف سے آیا، دوسری اوپر سے مہربانی ہو دھیان کر، علم یا علم بھی ان اللہ یا، کیا تو نے نہ جانا کہ خدا دیکھ رہا ہے؟ ترقی کر دے، ماں باپ آتے ہیں تو چینل بدل دیتے ہو، اور ایک دفعہ کہتے ہو حضور حاضر و ناظر ہے، وہ خیال نہیں آتا کہ حضور بیٹھے بھی دیکھ رہے ہیں کہ میں نیٹ پہ کیا دیکھ رہا ہوں، کیوں بھول جاتے ہو ہمارا اللہ بھی دیکھ رہا ہے کہ میں نیٹ پہ کیا دیکھ رہا ہوں، خیال گزرا، ساتھ ہی خیال علم یا علم بھی ان اللہ یرا، ربنا انک تعلم ما نخفی وما نعلن وما یخفی علی اللہ من شیء فی الارض ولا فی السماء، کوئی چیز ہاں زمین کے اوپر ہے ہاں نیچے ہے، کوئی چیز بھی اللہ سے نہیں چھپی، خیال آیا چھوڑ دی، لیکن جیسے میں نے کہا نا حضرت دین ہے ضرور گھوم کر آئے گا، تب گھروں میں ٹینکیاں شینکیاں نہیں ہوتی، تب ماشکی جس کو ہم ذاتی زبان میں کہتے ہیں وہی گھروں میں پانی دینے آتے تھے، گھر ان کی بیوی تھی، وہ پانی دینے کے لیے آیا، ماشکی پانی بھر کے نا جب وہ جانے لگا نا تو اس نے ہاتھ پکڑ لیا ان کی بیوی کا، انہوں نے اتنے پھڑیا، ادھر ماشکی نے کار پڑ لیا، وہ بیوی آگے سے ہاتھ چھڑا کر کہتی ہے وہ پتر کی ہو گئی، اس کو بھی خیال آیا اور روتا ہوا بھاگ گیا، اتنے وہ بھی بہ کے چنگا روئے تھے، اکھاں لال کیتیاں، کار مائی بھی بڑا روئی، ساری زندگی لنگ گئی ہے، بڑھے ویلے کی ہویا انہیں کی ہاتھ پڑ لیا، وہ بھی بڑا روئی ہے، حکیم ہوئی کار آئے تھے، حکیم صاحب دی اکھاں سجی تھی، ویکھیا تے کار والی دی اکھاں سجی تھی، انہیں پوچھا بھلی لوگ کی ہویا کیوں روئی، میں کہ پہلے تسی دسو تسی کیوں روئے، انہیں کہ بس ایک دھی آئی سی انہوں دکھان نہیں، دی نبض پڑی، شیطان نے اندر گندگی پائی، لیکن نال ہی یاد آیا اللہ ویکھدا پہ میں چھڑ چھڑے، کہہ لیں گے بس ادھر تسی ادھر ہی پھڑی، ادھی پھڑی ادھر کار ماشکی نے میری پھڑ، دھیان کریو پتر دھیان کریو، اج کسی دیاں تیاں نے کل ساڈیاں تیاں نے بھی جو اج کسی لیے چونک چ نہ کھلوئیے، اج کسی لیے نہ کھلوئیے، اج تسی کھلو گے کل کو تاڑی نہیں کھلوئے، بڑا دھیان کریے، بڑا دھیان، اپنی جوانی بڑی پاکیزہ رکھنی ہے، بڑی پاکیزہ، اور زنا سے بچنا ہے، یہ آگے علامہ صاحب اور میں تقریباً 1.5-2 گھنٹہ بیٹھ کر یہ روتے رہے حضرت کہ سانو اینجدہ پھسایا ہے کہ اج زنا آسان اور نکاح انتہائی مشکل کر چھڑے، نکاح انتہائی مشکل کر چھڑے، انتہائی مشکل کر چھڑے، لیکن بچنے کی طرف بچنے، زنا ایک ایسا گندا گناہ ہے، میں نے حدیث مبارکہ پڑھی کہ اگر کسی سے یہ گناہ سرزد ہو گیا نا، اس نے معافی مانگی اللہ نے اسے معاف کر دیا، لیکن پتہ پھر بھی اس کو سزا کیا ملے گی کہ جنت میں اللہ جل شانہ زانی سے کہیں گے کبھی تو میرے سامنے نہ آنا، زانی کو ہمیشہ کے لیے دیدار الہی سے محروم کر دیا جائے، اور آج بس اللہ اپنی حفاظت میں رکھے، بچ کے رہنا ہے، اس سے بڑا بچ، اپنی جوانیوں کو پاکیزہ رکھنا ہے، اپنی جوانیوں کو پاکیزہ رکھنا ہے، پھر دیکھو حضرت رنگ کیا لگتے ہیں، رنگ کیا لگتا وہی ہے، اور میں یہاں ایک روایت بھی اکثر سناتا ہوں کہ آپ کہو گے مولوی صاحب ایویں ساڈے کول ساڈیاں زمیناں کھون لگے ہو، ان کو قرآن و حدیث سے بھی تو دلیل دینا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دور مبارک تھا، اور زمین کا ایک ٹکڑا تھا، دو بندے لڑ پڑے آپس میں، ایک مالک تھا، ایک کا دل بے ایمان ہو گیا، اس سے پہلے کہ دونوں دستے گرے باں ہوتے، خون بہتا، کسی کی جان جاتی، وہ چار بڑے وڈیرے وچ رلے، انہوں نے بیٹھ کے کیا گل سنو، اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام موجود ہیں، یوں ایک دوسرے کا گرے باں پکڑتے ہو، چلو چل کے ان سے فیصلہ کرواتے ہیں، سارے لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس حاضر ہوئے، عرض کی حضور زمین کا ٹکڑا ہے، یہ دعویٰ کرتا ہے زید کہ میرا ہے، بکر کہتا ہے میرا ہے، آپ اللہ کے نبی ہیں، آپ فیصلہ فرمائیں کس کا ہے، کچھ ایسے ہوتے ہیں نا جن کو ادب اداب کی آگاہی نہیں ہوتی کوئی بھی، وہاں بھی ایک ایسا بیٹھا تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے عرض کرتا ہے حضرت اینج کرو کلا کلا کر کے نا ان سائڈ تے لے جاؤ، دونوں کی بات سنو، حقیقت حال آپ پر واضح ہو جائے گی، حضرت موسیٰ علیہ السلام جلال میں آ گئے، آپ نے فرمایا میں اللہ کا نبی ہوں، مجھے اس بات کی ضرورت نہیں کہ میں کلا کلا کر کے ان کی بات سنوں، مجھے اللہ نے یہ طاقت دے رکھی ہے، میں زمین کے ٹکڑے سے پوچھ لوں گا بتا تو دونوں میں سے کس کا ہے، آپ نے سب کو اکٹھا کیا اور لے کر چلے گئے، زمین کے اس ٹکڑے پر کھڑے ہوئے، فرمایا یہ زید دعویٰ کرتا ہے تو میرا ہے، بکر دعویٰ کرتا ہے تو میرا ہے، اللہ کے نبی حضرت موسیٰ تجھ سے پوچھتے ہیں بتا تو کس کا ہے، تو تفسیر میں لکھا ہے کہ وہ زمین کا ٹکڑا بول اٹھا، پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو سلام عرض کی، اور سلام عرض کر کے عرض کرتا حضرت یہ دونوں جھوٹے ہیں، نہ میں اس کا ہوں نہ میں اس کا ہوں، ان کو کوئی تیاری کریں یہ دونوں میرے ہیں، ہسی حضرت کیڑے وہم چ پے دے تے حقیقت کیا ہے، یہ وہ باغ ہے جس کے ہزاروں مالی تھے،
सिकंदर जब इस दुनिया से गया दोनों हाथ खाली थे। हाँ हजरत ध्यान करियो, खाली आए हैं और खाली ही यहाँ से जाएंगे। हाँ जाएगा क्या, अच्छे और बुरे अमाल साथ जाएंगे। हजरत हम ताड़ी मर्जी हजरत, जिदा मर्जी ढेर ला लो, लेकिन हजरत जी चंगा ही ढेर लाइयो, मंदा ना लाइयो। ये सियालकोट जाओ तो आपने हकीम अब्दुल हई रहमतुल्लाहि तआला का डेरा देख रखा है, ये सिटी सेंटर के थोड़ा सा आगे है। इतनी मौके की जगह है हजरत, हमने तो खैर नहीं देखा, लेकिन मैंने वो इंजीनियर देखे हैं जिन्होंने हकीम साहब से कहा ना, इंजीनियर था, हकीम साहब का मुरीद हुआ तो अपने पीर से प्यार था ना, तो अर्ज करते हैं हकीम खादम अली रहमतुल्लाहि तआला कहने लगा हकीम साहब बड़ी मौके की जगह है, सड़क के उत्ते तुसीं किते रोड 'ਚ भी जाके बहोगे ना तो दुनिया ने उत्थे भी आ जाना है, मैनूं इजाजत दो, हाँ मैं नक्शा बनावा ते सोहना प्लाजा बनाइए। तो हकीम साहब फरमान लगे, ओ बाबा जी रहन दो। कहने लगा नहीं जनाब प्लाजा बनाने। आप फरमान लगे यार असी बना लेना ही, लेकिन एक गल सुनी सी तां नहीं बनाया। वो कहते हजरत मशवरा करें ना, शायद बात की हकीकत कुछ और हो, क्या बात सुनी है, क्यों नहीं आपने बनाया? आप फरमान लगे यार असी सुने आए नाल नहीं लैके जान देंदे, असी तां नहीं बनाया। कैसे लोग थे यार, कितना तकवा था उन लोगों में, इस जानब तवज्जो ही नहीं की हजरत। तवज्जो की तो सिर्फ अल्लाह की तरफ की है, तवज्जो की तो सिर्फ हुजूर की गुलामी की जानिब की है, इस जानिब आए ही नहीं। और हजरत जो उसकी जानिब जाएगा ना, दुनिया तो ऑटोमेटिक उसके पीछे आएगी। ये इमाम याफई ने रोदुर रियाहीन लिखी, उसमें हजरत लिखते हैं कि हजरत हिजर अलैहिस्सलाम से ना किसी अल्लाह के वली की दोस्ती हो गई, तो हजरत हिजर अलैहिस्सलाम से पूछते हैं हजरत आपने अंबिया सलामुल्लाहि तआला अलैहि मजमाइन के अदवार देखे, हुजूर नबी अलैहिस्सलाम का दौरे मुबारक देखा, हजरत अबू बकर सिद्दीक का दौर देखा, हजरत उमर, हजरत उस्मान, हजरत सैयदना अली और मुर्तजा रिदवानुल्लाहि तआला अलैहि मजमाइन के अदवार देखे, ताबईन का दौर देखा, तबा ताबईन का दौर देखा, कभी कोई ऐसा भी वली देखा जिसकी आपको समझ ही ना आई हो कि ये है क्या? तो हजरत हिजर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मैं मस्जिद नबवी शरीफ में हाजिर था हुजूर नबी अलैहिस्सलाम के दरबार मुबारक में सलाम पेश करने के लिए, तो क्या देखता हूँ वहाँ इमाम अब्दुल रज़्ज़ाक़, इमाम बुखारी के दादा उस्ताद हैं, कहते आप दर्स दे रहे थे और लोग बैठ कर ना दर्स सुन रहे थे। फरमाते मैंने देखा कि कोने में एक लड़का अपने घुटनों में अपना सर दिए बैठा है, फरमाते मैंने समझा शायद सोया है। मैं गया, मैंने उसे हिला कर कहा ओए नौजवान, वहाँ इमाम अब्दुल रज़्ज़ाक़ दर्स दे रहे हैं और तू यहाँ सोया है। अब अल्लाह का रज़्ज़ाक़ सिफाती नाम है, तो उनका नाम था अब्दुल रज़्ज़ाक़। तो आप फरमाते हैं उसने सर तो नहीं उठाया, लेकिन मुझे जवाबन कहता है वहाँ वो बैठे हैं जो रज़्ज़ाक़ के अबद से सुन रहे हैं, जो दर्स दे रहे थे उनका नाम था अब्दुल रज़्ज़ाक़, और कहते हैं यहाँ वो बैठा है जो डायरेक्ट रज़्ज़ाक़ से सुनता है। फरमाते मैंने कहा उम्र थोड़ी है, दावा बहुत बड़ा किया। तो कहते मैंने उसे मुखातिब करके कहा अगर तू अपने दावे में सच्चा है तो बता मैं कौन। तो कहते हैं जब उसने सर उठाया तो जी चाहा कि इसके चेहरे की पाकीज़गी पे कुर्बान हो जाऊं। जिन्हें रजी जवानी बेदाग रखी हुई फिर लाटां दे वजदी हैं, फिर चेहरे पर अजीब ही पाकीज़गी का, जिन्हों ही सादा जुबान कहने हैं जद्दी सत्ती रजी, फिर चेहरा तो चमकता है ना, अंदर दा नूर चेहरे ते आंदा है हज़रत से। अब फरमाते वो मुझे जवाबन कहता है अगर मेरी फरासत गलत नहीं तो तुम हिजर हो। कहते उसे पता चल गया कि मैं हिजर हूँ, मुझे नहीं पता चला ये क्या शय बैठी है। आओ तो सही हजरत, फिर देखो वो क्या मुंह डाले। हकीम साहब फरमाते हैं जो गोडे रह गए, दंद निकल गए, अखां कमजोर हो गई, फिर और डेरा लाया तो की लाया, लेकिन ये नहीं को आएगा तो वो नहीं। लेकिन हजरत जब हर शय पूरे जोर पर हो तो फिर हजरत जो आएगा फिर देखो तो सही वो करता क्या है। वो इकबाल ने लिखा था ना, इकबाल ऐਵੇਂ नहीं कहता, इकबाल कहता है आलम है फकत मोमिन जांबाज की मीरास, मोमिन नहीं है जो साहिब लौलाक नहीं है। हाँ बड़े लानी। और मैं अक्सर क्या करता हूँ, यहाँ अगर कोई अमीर बंदा बैठा है तो कितना अमीर होगा, और हजरत हम तो उस गरीब दौर से ताल्लुक रखते हैं कि जब पैसे कागज के हैं। हजरत इस आसमां और जमीन ने वो भी दौर देखा है कि जब पैसे सोने और चांदी के हुआ करते थे। हजरत कितने अमीर लोग थे, और उसने तो कहा था जमीने चमन गुल खिलाती है क्या क्या, बदलता है रंग आसमां कैसे कैसे, न है कसरे दारा न गौरे सिकंदर, जमी खा गई आसमां कैसे कैसे। हम तो शायद कुछ नहीं हजरत, हम वो है 14 साल 13 साल की उम्र में हमारा बच्चा बालिग होता है, 70 साल 75 साल 80 साल औसत उम्र है, खत्म हजरत। आद और समूद वो कौम है जिनका बच्चा 400 साल की उम्र में बालिग हुआ करता था, 1400 साल उनकी औसत उम्र हुआ करती थी। जमीन पर रहना वो अपनी तौहीन समझते थे, वो कहते ये कीड़ों मकोड़ों का काम है जमीन पर रहना। वो पहाड़ तोड़कर वहां रहा करते थे हजरत वहां, लेकिन क्या हुआ हजरत, रे वो भी नहीं। और तारीख में बड़े नाम लिखे पड़े, हम कुछ भी नहीं है हजरत, हम मरलों वाले बैठे हैं, कनालों वाले बैठे हैं। मैं अक्सर प्रोग्रामों में जाकर
अहबाब की इस्लाह की खातिर ये बात कहा करता हूँ, बड़ी भी मैं छलांग लगाऊं, बड़ा भी यहाँ को अमीर बैठा है, कितना अमीर बैठा होगा, मैं बड़ी बड़ी चाल मारने लगा जी, 1000 किले कुछ भी नहीं है। सिर्फ एक तारीख का नाम हजरत सिकंदर, जिसने 14 साल की उम्र में 21 साल की उम्र में 15 लाख मुरब्बा मील फतह किया। हजरत 5 बरे आजम उसने 21 साल की उम्र में फतह कर ली। तारीख ने फातिह आलम इसलिए लिखा, अगर मर ना जाता तो उस नौजवान ने वाकईतन सारी दुनिया फतह कर लेनी चाहिए। और ये स्पेशल पुत्र, जितने जवान बच्चे बैठे हो, ये यहूदो निसारा की बहुत बड़ी हमारे खिलाफ साजिश है। हमारी जवानियों को उन्होंने जंग लगा के रख दिया। 21 साल की उम्र में 15 लाख मुरब्बा मील फतह कर दिया। हजरत ऐसे 21 साल के मुंडे अम्मा कुछ लांदी है नहीं, ये तो छोटा है, ये तो छोटा है। वह 17 साल की उम्र में मोहम्मद बिन कासिम हजरत सिंध फतह करके वापस भी चला गया था। ऐसे 21 साल का जवान मुंडा, लेकिन अम्मा कहती नहीं ये छोटा है, छोटा। पता नहीं किदू हजरत असी बड़े होंगे, पता नहीं किदू बड़े होंगे। अपनी उम्र पुत्र जाया ना करो, ये जवानी फिर हाथ नहीं आएगी। मैं अक्सर जुमे में कहा करता हूँ, अगर मुझे कहे ना कि मांग तेरी एक ख्वाहिश पूरी करांगे, तो मैं कहता हूँ मैं यही ख्वाहिश करूंगा, मैंने फिर 17 दे लिया अकला 35-36 का हो गया मुझे। जिहड़ी हजरत जवानी की इबादत का मजा है, जिहड़े जवानी के सजदे का मजा तुहानू की दसां की मजा होना सर। अपनी जवानियां जाया ना करो पुत्र, किसी ने नहीं जी आके पूछना है, किसी ने नहीं जी आके पूछना। पहले तुम्हें सुनाया जिन्हां लई तू पाप कमाई, किथे नहीं तेरे करते। हाँ हजरत, कब्र में वही आएंगे जिनकी सुन्नतों को आज हम छोड़ चुके हैं। कब्र में वही आएंगे जिनकी सुन्नतों को आज हमने तर्क कर दिया है। ना छोड़ो यार, अपनी जवानियां जाया ना करो। ये जवानी बार बार नहीं आई, ये बहुत बड़ी नेमत है। दर जवानी तोबा करदन शेवाए पैगंबरी। जवानी में अल्लाह से ये जो नबी होते हैं ये मासूम होते हैं, नबी खता नहीं करते। यह तोबा से मुराद है अल्लाह से लो लगाना। ये जवानी में अल्लाह से लो लगाना ये अंबिया का शेवा। लगाओ जवानी में लो, फिर देखो तो सही हजरत वो तुम्हारा क्या मूल डालेगा। ये हकीम साहब बड़ी खूबसूरत बात कहा करते थे, ऐ नहीं कि कोई बुढ़े वेले आएगा तो वो वापस तोड़ देगा, नहीं, वो से भी नवा देगा। लेकिन जब जवानी का जोश हो, जब ख्वाहिशों का जोर हो, बंदा उन ख्वाहिशों को दबाकर जब अल्लाह के हुजूर आकर झुकता है ना, तो फिर तुम्हें क्या बताऊं हजरत रंग क्या लगता है। मौलाना रूम रहमतुल्लाह तआला ने बड़ी खूबसूरत मिसाल लिखी, बड़ी खूबसूरत मिसाल। आप फरमाते कोई बुजुर्ग बैठे थे, उनके सामने से ना बंदा भागता हुआ गया, अफयादा नसिया पे जाए। अगले दिन फिर बैठे थे, फिर भागता हुआ गया। तीसरे दिन फिर बैठे थे, फिर गया। चौथे दिन जब गुजरा ना, आपने पकड़ लिया उससे। आपने फरमाया भैया तुझे क्या मुसीबत पड़ी है, रोज तू इस वक्त भागता हुआ निकल जाता है उस जानिब। और करता है हुजूर मैं अपना साया फड़न दिया था। आपने फरमाया फिर तू सारी जिंदगी नहीं पकड़ सकेगा। उसने कहा हुजूर वो क्यों? आपने फरमाया तूने कर दी है सूरज को कांड, साया आ गया है तेरे आगे। अब सूरज को कांड करके जितना मर्जी भाग, क्योंकि साया आगे है, वो भागता रहेगा, तू उसके पीछे भागता रहेगा, पकड़ नहीं सकता। हाँ एक काम कर ले, पकड़ फिर भी नहीं सकेगा, लेकिन फिर ये होगा कि तू साये के पीछे नहीं भागेगा, साया तेरे पीछे भागेगा। उन्हें इसकी रो की, आपने फड़कने का पासा पोया और मुंह कीता सूरज जल। फरमाया सूरज जल नूं दौड़ ला, साया तेरे पीछे पीछे दौड़ेगा। ये मिसाल देकर मौलाना रूम कहते हैं तूने भी अल्लाह और अल्लाह के रसूल के दरबार से मुंह फेर लिया है और भाग रहा है दुनिया के पीछे। अब दुनिया आगे आगे, तू पीछे पीछे। ओए हाँ, भागना है तो दौड़ मदीना की तरफ लगा, फिर दुनिया तेरे पीछे पीछे होगी, तू आगे आगे होगा। रंग क्या लगते हैं। ये सिकंदर 21 साल की उम्र और 5 बड़े आजम फातिह। जिंदगी ने साथ नहीं दिया, सांप ने उसको डस लिया था। और अरस्तू ने सिकंदर का ट्रीटमेंट किया। जब अरस्तू ने देखा ना कि सिकंदर का वजूद अब नीला पड़ रहा है, तो वो समझ गया कि ज़हर पूरे वजूद में सरायत कर चुका है। तो उसने वहां सिकंदर को कहा सिकंदर तू बचेगा नहीं, सिर्फ चंद घड़ियों का तू मेहमान। तो वहां तारीख लिखती है कि सिकंदर ने अपने वजीर को बुलाया और बुला करके, ईसाई मजहब था सिकंदर का, वो कहने लगा कि जब मुझे कफन दोगे ना तो डायरेक्ट मुझे दफनाने की ना लेकर जाना, बल्कि इस तरह करना कि दाएं बाएं से मेरा कफन फाड़ के ना मेरे हाथ कफन से बाहर रखना। और करना क्या, मुझे पूरे शहर यूनान के चक्कर लगवाना। तो वजीर पूछता है सिकंदर वो क्या, इसमें क्या राज है? तो कहता है मैं जाते हुए इन लोगों को सबक देना चाहता हूं, वो इस दुनिया से जीना लगाना। देखो आज 15 लाख मुरब्बा मील फतह करने वाला सिकंदर इस दुनिया से खाली जा रहा है। वो चलिए वो कुछ नहीं लेकर गया, हम क्या लेकर जाएंगे। और फिर यहाँ किसी ने बड़ा खूबसूरत लिखा था, ये वो बाग है जिसके हजारों माली थे। ध्यान रखना हजरत, ये हमें बड़ा वहम पड़ गया है, मालिक हम नहीं है हजरत। ये उलमा बैठे हैं, उसने कुरान करीम में कब कह दिया कि तुम मालिक हो? तो कुरान करीम में बार बार कहता है वलिल्लाहि मुल्कुस समावाति वल अर्द, और अल्लाह ही के लिए है जमीन और आसमान की बादशाहत। वल्लाहु अला कुल्ली शैइन कदीर,
या आप आयतल कुर्सी में हर फर्ज नमाज के बाद इस बात को दोहराते हो, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल कय्यूम ला ताखुदुहु सिनतुम वला नौम लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्द। और अल्लाह ही के लिए है जो कुछ आसमानों में है और जो कुछ जमीनों में है। सूरह आले इमरान 3 पारा। कुल, महबूब आप कह दीजिए, अल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क, ऐ अल्लाह ऐ मुल्कों के मालिक। ते हाल करियो पुत्र ओ मालिक जे, असी नहीं माल, हम तो माली हैं यार। और मैं अक्सर अपनी मिसाल दिया करता हूं, जब मैं थोड़ा बड़ा हुआ ना तो मैंने क्या देखा, मेरे घर के बाहर जो प्लेट लगी थी ना उस पर लिखा था चौधरी इलमदीन। फिर वो प्लेट बदल गई, दादा वो का इंतकाल हो गया। फिर नई प्लेट क्या लगी, हाजी मोहम्मद बूटा। अब पता नहीं हजरत ये प्लेट कब तक रहती, जगह वहां रही हजरत, लेकिन क्या हुआ हजरत, मालियों के नाम बदलते रहे हजरत। असी माली हैं हजरत, असी मालक नहीं है। मालवान बच्चे बैठे हो, अपनी जवानियों को जाया न करो। दूसरी बात याद रखना हजरत, ये बात मेरी आज पल्ले बांध लेना, अगर आज हम बुराई से बाज नहीं आएंगे तो फिर ये बुराई कल जरूर हमारे आगे आएगी। हजरत भी बैठे हैं, अल्लामा साहब भी बैठे हैं। ये हदीस पाक का मफहूम है कि जिना देन है, याद रखना पुत्र, जिना देन है, वापस आएगा जरूर। उसकी बेटी के साथ, उसकी बीवी के साथ, उसकी बहन के, यहां तक लिखा है कि उसकी दीवार के साथ जिना किया जाएगा, जिना वापस आएगा। ध्यान रखिए पुत्र, ए ओ टोया जी जे कड्डोगे ते कल किसी ना किसी साडे ने भी